राम तो छोड़ एक मिनट नहीं मतलब आपके अखबार में मेरे अखबार के लिए तो मेरी बात मैं करता हूँ क्या है let's say something good in Sindhi on Sindhi wedding both scripts in Arabic script also and in Roman script also yes. Roman not Devanagari Devanagari is there yes Mr. Gandhi राम साहब आगे अरे सर चलाएंगे काम कर दे हाँ श्योर लाल जा जाती जो लड़ाई माँ सदाई बाग बहार सिंधी बोली अमर रहे 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 सिंधी भाषा
अमर रहे। भाषा भी है, बोली भी है। ठीक है मान लिया एक चालू वेट 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 चलो आ जाओ इस तरफ, एक मिनट भैया इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। थैंक यू। एक मिनट यस सर। एक मिनट भैया क्या आइए बस सर पीछे आ जाओ। यस सर। मार्केट से कुछ 12-15 लाख कम दिया, 15 लाख मार्केट से कम दिया। दादा डब्ल्यू हेड हाल At the outset, I welcome you all to the opening ceremony of Sahyog Foundation Corner. Particularly mentioning my pleasure to welcome our boss, Dr. Naresh Chandra, the Pro Vice Chancellor, University of Mumbai. Though everyone is knowing his qualities, capabilities, his caliber, but I'll be missing my duty if I won't mention just few points. Dr. Naresh Chandra is a person of multifaceted qualities. Just few years back, he was a principal of Birla College, Kalyan. Though he is a person of botany, he is a professor of botany, but the day he became the principal of Birla College, Kalyan, he brought that college to the topmost list of the colleges of the whole nation. He brought this college to the map of popular colleges of India. Thereafter, everyone academician came to know about the qualities of Dr. Naresh Chandra. And it was because of this that our university brought him from Birla College to the gates of university as the director of Board of Colleges and University Departments. And it was he, while last year our UGC team visited the university, we got lot of grants and sanctions. Whatever we wanted, we got it. That was only because of the particular handling of the situation of my and just few months later on, everyone is knowing we have seen him on the chair of Pro Vice Chancellor. Dr. Naresh Chandra ji, we welcome you. There are no boundaries of our pleasure, of our happiness to welcome you at the opening ceremony of this Sahyog Foundation Corner. We are assembled here because of the efforts of Mr. Ram Jawharani, the chairman of
Sahyog Foundation and its associate chairman, Mr. Chandra Magnani, because without his help, without their financial assistance, we could not achieve these objectives and goals whatever we have achieved today. We have purchased computers, most worthy research books, useful for our MPhil and PhD students. Not only we will decrease our cost of publication, our DTP cost, but it is my object, it is my plan to record the memory of all the Sindhi books written by anyone, written on any branch of the literature, written in Sindhi or on Sindhi in any language. We will have a record of these books in our memory of Pentium 2 to 33, whatever we have bought from Messrs. JKM Electronics. They are a nice person. They also have given me a lot of their cooperation. And thereafter, I must mention in my happiness, my pleasure to welcome our President of the K, Mr. Nana Chudasama. I think there is no need of my words to waste the precious time. Everyone is anxious to listen the sweet voice of Nana Chudasama, Mr. Ram Devrani, and one more celebrity is here, Mr. Vishwanath Sachdev. It is very long he is associated with the Sindhis. He is a poet, he is a writer of Hindi language, and because he is a poet and writer of a language, we are having interrelations of each other. Every time, since very long, he is helpful in nature, he is helping to so many Sindhi organizations, and Dr. Mr. Sachdev, I really am very happy. I feel immense pleasure to welcome you to this function. And the last corner there is Dr. Dayalacha, Principal Dr. Dayalacha, under whose guidance I did my PhD. Mr. Guruji, sir, I welcome you to this function. And before they come and speak to you, they will address. I will honor them with the bouquets of flowers. As my President of the day. Mr. Vishwanath Sachdev, editor of Navbharat Times. Mr. Ram Devrani, the chairman of Sahyog Foundation. Mr. Chandra Magnani, the associate chairman of Sahyog Foundation. My Guruji, Principal Dr. Dayalasha. I am just as an obedient student, an obedient subordinate, followed the instructions whatever given to me by my boss, Dr. Naresh Chandra. Actually, it was my duty to first honor the bouquets of flowers. I applied these instructions, so sir, at last. And now I will request Mr. Vishwanath Sachdev, the editor of Navbharat Times, to address his sweet advice. Yes, I will welcome you, Nana Chudasama, Dr. Naresh Chandra, Ram Devrani, Mr. Matlani, Mr. Dayalasha, और मित्रों, इस आयोजन में शामिल होना मेरे लिए खुशी की बात है, इस माने में कि हम किसी भाषा की बात सोच रहे हैं। भाषा चाहे कोई भी हो, सिंधी हो, मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो,
की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, धरोहर है हमारे पास, सबसे महत्वपूर्ण धरोहर जिसके माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो तो जानवर भी अभिव्यक्त करते हैं एक दूसरे के सामने अपने बाप को, पता नहीं क्या कहते होंगे, मैं नहीं जानता जानवर एक दूसरे क्या कहते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। हमारी विशेषता ये है कि जब हम अभिव्यक्त करते हैं भाषा के माध्यम से तो दूसरों को भी पता चल जाता है कि हम क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूँ इस नाते हमें अपनी भाषा के प्रति महत्व भी होना चाहिए, अपनी भाषा के प्रति गर्व भी होना चाहिए। मैं पूछ रहा था यहाँ कि जो कंप्यूटर आज इस विभाग में लगा है, उस कंप्यूटर में कि किस भाषा में, किस लिपि में होगा। मुझे पता चला अंग्रेजी में, रोमन में होगा, सिंधी में होगा, अरबिक में होगा और देवनागरी में भी होगा। अपने आप में बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जब मैं पूछ रहा था तो कुछ अर्सा पहले ऐसे ही समारोह में जाने का मुझे मौका मिला था। सिंधी की एक किताब का प्रकाशन हो रहा था और मुझे कहा गया था कि मैं इसका लोकार्पण करूं। मुझे अच्छा लगा, मैं पहुंचा वहाँ। 30-40 लेखक थे सिंधी के वहाँ, बम्बई शहर के सारे अच्छे लेखक सबके सब, जिनको हम बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था वहाँ, मैं आज फिर उस सवाल को दोहराना चाहता हूँ जिसको सब आपके आज्ञा से। मैंने उन लेखकों से पूछा था कि जिस लिपि में आपने जो पुस्तक लिखी है, अरबिक लिपि में, उस लिपि में आपके घर के कितने लोग इसे पढ़ पाएंगे? विश्वास कीजिए 20 या 25 जितने भी लोग थे उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि हाँ मेरे परिवार के लोग इसे पढ़ सकते हैं, मेरे बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। तब मुझे दुख हुआ था कि वो किसके लिए लिख रहे हैं, अपने बच्चे के लिए भी नहीं। अगर हम अपने बच्चे के लिए भी नहीं लिख रहे हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं? अभी आज नारे लगाए थे बहन ने, सिंधी बोली अमर रहे, सिंधी भाषा अमर रहे। कैसे अमर रहेगी सिंधी बोली या सिंधी भाषा? दो ही तरीके हो सकते हैं ना। एक तो हम उसे बोलने में गर्व का अनुभव करें अपनी भाषा को, अपनी बोली को। वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ तथाकथित अच्छी सोसाइटी में आप जाते हैं तो वहाँ सिंधी नहीं बोली जाती, पंजाबी नहीं बोली जाती, वहाँ अंग्रेजी बोलना फैशन हो गया है। और दूसरा तरीका होता है कि हम अपना साहित्य रचें, उस साहित्य को जाने, समझें, पहचाने, पढ़ें उस साहित्य को। तो साहित्य हम रच रहे हैं, हिंदी में किताबें लिखी जा रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं। यहाँ बैठे हैं जो हर साल 2-4 पुरस्कार लेते हैं। मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ इनसे, इतना लिख कैसे लेते हैं और इतना पुरस्कार कैसे ले लेते हैं। लेकिन है उनके पास कुछ देने के लिए समाज को, वो दे रहे हैं समाज को अपने कलम के माध्यम से। बहुत मुश्किल है इस समय। कितने भाषाएं, कितनी लिपि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे? उसे हम अंग्रेजी भी सिखाएं, उसे हम देवनागरी भी सिखाएं, उसे हम अरबिक भी सिखाएं, कितना बोझ हम उस पर डालेंगे? और कितने बच्चे, 8 विद्यार्थी हैं इस विभाग में कुल मिलाकर के। बीए ऑनर्स में इतनी संख्या है 10 या 12 की सिंधी भाषा पढ़ने वालों की। उसके नीचे कितने हैं मुझे नहीं पता। लेकिन आखिर बच्चा क्यों पढ़े भाषा? उसे कुछ रास्ता दिखना तो चाहिए ना कि आगे उसका कुछ रास्ता है जिससे आगे पहुंच सकता है। भाषा साहित्य के जानने के लिए, साहित्य के सृजन के लिए भी पढ़ी या सीखी जाती है। जिसे हम अपने बीते हुए कल को जीवित रख सकते हैं, जिस पर हमें नाज है। आज सैल्यूट फाउंडेशन की ओर से इस विभाग में एक नई शुरुआत हुई है, नवीनीकरण जिसे कहा जा सकता है। तो वो नवीनीकरण जरूरी होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं सैल्यूट फाउंडेशन के अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बारे में सोचा, इस दिशा में सोचा। मेरी उम्मीद है और मेरी कामना भी है कि ये विभाग दिन दूनी रात चौगुनी करे, उन्नति करता रहे। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा विभाग के कि हम सिंधी के सारे साहित्य को कंप्यूटर पर लाना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा और बड़ा संकल्प है, आसान नहीं है। ये बहुत लंबा चौड़ा साहित्य है सिंधी का। तो भले ही 150 साल पहले सिंधी का कोई साहित्य ना हो,
लेकिन आज है, हम इस बात पर गर्व है। मैं एक बार फिर विभाग को शुभकामनाएं देता हूँ, सहयोग फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कार्यवाहियाँ आगे ले जाने की समाज को लगातार होती रहेंगी आप सबके सहयोग से। धन्यवाद। विश्वनाथ सचदेव के ये अल्फाज कि सिंधी भले किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जाए उसको आगे बढ़ना चाहिए। सर, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे मालूम है जो मैंने कहा कि कंप्यूटर में विकास करें वो बहुत बड़ा मकसद है। उसके लिए एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, वर्षों भी लग सकते हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन शुरुआत आज से हुई है। सहयोग फाउंडेशन के आदर की वजह से हुई है, तो हम अपने मकसद पर भी पहुँच पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने दूसरे मेहमान को आपके सामने लाऊँ। Before that, I'll welcome my brother, my guest, Principal Gordhan Jani, Dimitri College Education College from Malacca. सबको की अपलास। जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो न सिर्फ सहयोग फाउंडेशन बल्कि हमारे डिपार्टमेंट में कई और बहुत बड़े कार्य हैं। सिंधी भाषा भवन है, दूसरे बहुत बड़े मकासद हैं जिनमें हमें उनका बहुत साथ है, बहुत सहकार है, बहुत सहयोग है। मिस्टर राम दुरानी, Honorable Pro Vice Chancellor Dr. Naresh Chandra ji, World President Giants International श्री नाना चुड़ासमा, एक उच्च कोटि के साहित्यकार लेखक मिस्टर विश्वनाथ सचदेव, नवभारत टाइम्स के एडिटर डॉक्टर दयाल आशा, मिस्टर चंद्र मंगनानी और आप सिंधियत के सभी शहदाई। मेरे साथियों, हर कौम, हर जाति को अपने भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पे नाज होता है, गर्व होता है। मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति, हर इंसान, उसका अपने देश, अपनी जाति, अपनी साहित्य, अपनी संस्कृति, सभ्यता, तहजीब और अपने भाषा की तरफ एक कर्तव्य है, एक फर्ज है जो उसे निभाना है उसके विकास के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। हमारे हालात में, सिंधी समाज के हालात में वक्त और हालात ने ऐसे कुछ सितम किए, पार्टीशन भी, उस वक्त और हालात में हमारी जिंदगी की लड़ियां बिखेर दी। उस दौर के लोग, उस जनरेशन के जो लोग थे, नाना साहब मैं बताना चाहूँगा काफ़ी ऐसे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने अपनी आधा जिंदगी देश के आज़ादी के लिए दी और आधा जिंदगी उन्होंने अपनी सिंधी साहित्य, संस्कृति और भाषा को बचाने में खर्च कर दी। सही माना में ऐसे लोगों का आज की जनरेशन पे उपकार है, आने वाली पीढ़ियाँ कभी उन्हें भुला नहीं पाएगी। आज अगर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, इस मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर सिंधी विभाग है तो इन लोगों के बदौलत है, क्योंकि उस वक्त, उस पार्टीशन के दौरान अगर वो लोग अपना हौसला खो देते थे, अपनी हिम्मत खो देते थे, तो शायद आज ये हम सिंधी जो बोल रहे हैं या सिंधी जो बुक्स निकल रहे हैं वो नहीं निकाल पाते। उनके हौसले और उनकी मदद से, उनके हिम्मत से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आफरीन है। मेरे दोस्तों, काफी सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपनी भाषा को, अपनी साहित्य, तहजीब और संस्कृति को बचाने में लगी हुई है। सहयोग फाउंडेशन ने भी अपना एक छोटा सा कारवां आगे बढ़ाया है। मैं अपने आप को आज बिल्कुल खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे दोनों बाजू सहयोग फाउंडेशन के दो पावरफुल पिलर्स बैठे हुए हैं। नाना चुड़ासमा, जिसे मैं बैकबोन कहता हूँ अपने सहयोग फाउंडेशन का, और विश्वनाथ जी जो सहयोग फाउंडेशन के जन्म से हमारे साथ है और इस पौधे को उन्होंने अपने प्यार और अपने आदर्शों से सींचा है। ऐसे लोग हमारे साथ है। हमने अपने उस राह में कुछ कदम भाषा को बढ़ाने के लिए, जैसे सिंधी सहयोग टाइम्स हम लोग हर महीने निकालते हैं। सिंधीज का और नॉन सिंधीज का आपस में अपनापन, एक दोस्ताना नाता रहे, एक दूसरे को अपने लिटरेचर की जानकारी हो, उसके लिए हमने इंग्लिश में सहयोग टाइम्स मैगजीन जो हर 2 महीने में निकलती है, वो 4-5 सालों से शुरू है। सहयोग का एक उसी दिशा में एक छोटा सा और कदम है जहाँ पे हम ये चाहेंगे कि सिंधी लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जाए। दूसरा जो आज मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझूंगा, आज से
करीबन 3 साल पहले इसी मंच पे सहयोग फाउंडेशन के एक सेमिनार में सिंधी भाषा भवन की योजना की गई थी। सिंधी भाषा भवन के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने हमें 3 एकड़ जमीन अलॉट की है, जो जमीन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। पहले उस पे एक छोटे से पैमाने पे करीबन 40-50 लाख की लागत से हम एक भवन बनाना चाहते थे, मगर धीरे धीरे कुछ हमें ऐसे दानवीर मिले, ऐसे साथी मिले जिन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई और आज उसका शेप जो है हम उसको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, 3 फेजेस में बना रहे हैं। 3 करोड़ की लागत से होगा। 38 लाख हमारे पास बैंक में 3 साल पहले थे, जिसके ब्याज के साथ आज 52-55 लाख हो चुके हैं। 50 लाख एक और हमारे दानवीर मित्र ने कमिट किया है, जो उनके पास रेडी है, कभी भी हम उनको सिर्फ लेना है। इसी तरह से अगले महीने हम प्रो वाइस चांसलर और वाइस चांसलर जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले महीने हमारे चेती चंद के दिन पे उसकी भूमि पूजा हो और ये सिंधु भारत का एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का, आपका जो सहयोग है उसके बगैर सहयोग फाउंडेशन नहीं चल सकती, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सभी अतिथिगण, और मेरे सामने बैठे सभी भाइयों और बहनों, और अध्यक्षीय भाषण एंड अध्यक्ष भी कैसे कि रिनाउंड ओरेटर नाना चुदासमा जी का भाषण अपने को सुनने का है। मैडम वाइस चांसलर यहाँ आने वाली थी और उद्घाटन वही करने वाली थी, लेकिन एक यूजीसी की टीम 12:30 बजे यूनिवर्सिटी में आने वाली थी फोर्ट कैंपस में, एंड इसलिए as per her directions I have come here to convey her as well as every one of every member of Mumbai University family good wishes। श्री राम जवाहरानी जी ने बहुत सही एक बात रखी कि सिंधी भाषा भवन जो 3 साल पहले जिसकी योजना बनी थी और आज वो मार्च के महीने में एक अच्छी तिथि को लेके उसका भूमि पूजन करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि चुदासमा जी पूछ रहे थे कि कितने साल का प्रोजेक्ट है ये, तो पंचवर्षीय योजना मतलब आगे के 2 साल में ये बिल्डिंग बन के जरूर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सिंधी भाषी और सिंधी प्रेमी कल्याण एंड उल्लासनगर बहुत पास है, और डॉक्टर जानी, प्रोफेसर दयाल आशा जी, वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम कल्याण। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए कि सारी भाषाएं आपस में बहने हैं, कम्युनिकेशन का काम करती हैं और एक दूसरे को जोड़ने का ही काम करेंगी हमेशा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये जो कॉर्नर आज जिसका उद्घाटन हुआ उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए होगा, और सिंधी भाषा भवन 2 साल के अंदर जरूर बनके तैयार होगा, ऐसी आशा व्यक्त करते हुए माननीय चुदासमा जी से विनती करूंगा कि वो अध्यक्षीय भाषण करें। This is the indirect hint. The indirect hint is to speak less. You can't hear, so you might as well. I think he is highly confused. I'll tell you, this is a standard thing during election time. Whenever a candidate is contesting, and if the opponents don't want him to make a speech, they see that the mic doesn't work.
Well, according to me, all politicians of India are my opponents. But anyway, I must tell that Pro Vice Chancellor Dr. Chandra, Ram Jawarani, everybody here on the dais. When I came here, I saw tremendous enthusiasm in Mr. Matlani, Dr. Matlani. I was very happy. I say, here is a man who is going to get this department really going. When I came here, my purpose of coming, I knew a little bit of this, but was Mr. Ram Jawarani. But according to me, in entire Bombay city or Mumbai city, if there is one man you cannot say no, is to him. When my secretary phones and they say the Ram Sahib telephone pe hai, I always say yes to him to whatever his proposal is. He is selfless. He never takes no as an answer. And that is the perseverance which has brought him to this level, and that is why Sahyog Foundation is doing so well. I am a great admirer of Ram and his Sahyog Foundation. We are only what you call a piece of furniture or a decoration. He is the one who is working, and when he told me he is going to have this Sahyog Corner in university, I was very happy. And when he is talking about this building, I am sure he will complete it. I always ask people in India that when you lay a foundation stone, when will the building be ready? Pro Chancellor rightly heard me asking that question, because most of the foundation stones in India are laid for stray dogs. And we don't want that to happen to this particular structure. So I have got a commitment, and I am sure he will fulfill his commitment. I have nothing to say. As far as Sindhis are concerned, I must tell you one thing. I know Sindhis better than anybody else in Mumbai city, because my education was in Sindh. My guardians were Sindhis. I was studying in NKV High School in Karachi, and I know Sindhi in and out. In fact, I was saying that if God were to hear my prayer, in next birth I would like to be born a Sindhi. The reason is they are peace-loving people, they are enterprising people, they are generous people. I am on a trust of one of the Jaslok hospital, and I see how much of money comes in just because people want to do something for humanity. And I think this is something which touches me. So I would say that I am very confident that this kind of an institution will go a long way. Language is never hurt. More the languages you learn, richer you become. And I think this Sindhi language needed to be built up, and I am very glad Sahyog Foundation has done it. University is supporting it. With the premier university of India, if that is supporting you, you don't need any chief minister or any politician to support you. It is the strength of this university which will get this language into the international map. I am very glad I am with you here. Our will always be with you, and I am sure all the entire Sindhi community should consider today a historic day and a day of pride, because it is a great event in the Sindhi language issue, in the Sindhi community, and in the field of literature. So I think today is the day we should celebrate, and I would like to congratulate Sahyog Foundation and the university for taking such a bold and a right step towards the great progress of this country. Thank you. I will not waste your precious time. Rather, I will be highly thankful to our Pro VC, Dr. Naresh Chandra, Mr. Vishwanath Sachdev, Mr. Ram Jawarani, and Mr. Nana Jodhama, Mr. Chandra Bengali, and Dr. Dayal Asha. माँ तव्हां सभिनी ॿारनि जो तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां। धन्यवाद।